This is Gyanesh Dikshit. Now we are starting exercise 6.4. So here we are starting from first question, which is let triangle ABC similar to triangle DF. There are two triangles ABC and DF are similar, whose areas are 64 centimeter square and 121 centimeter square. Not necessary the diagram. So here, or we can draw also. If first triangle is ABC, this one is triangle ABC and another triangle is DEF. So these two triangles are similar, it is given. Now here given triangle ABC similar to triangle DEF, it is given, and two more things are given, the areas of their triangles also, means area of ABC is given which is 64 centimeter square, area को हम AR से डिनोट करते हैं, and area of DEF which is equal to 121 centimeter square, 121 centimeter square. Clear? And if EF equals to EF the की वैल्यू भी given है आपको, that is 15.4 centimeter. Now we have to find BC. BC की वैल्यू में फाइंड करनी है. देखिए EF और BC दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो और ट्राइंगल सिमिलर इट मीन्स वी कैन यूज द एरिया रेशियो थ्योरम. सो सिंस triangle ABC similar to triangle DEF, then by area ratio theorem, by area ratio theorem, the ratio of their areas means area of ABC upon area of DEF equal to the square of the ratio of their corresponding sides. Corresponding sides are BC and EF. So BC upon EF, here BC we have to find and EF is given, so that we take these two sides and its whole square. Now area of ABC is given which is 64, area of DEF is given that is 121 equals to BC upon EF, BC we have to find upon EF is 15.4 and its whole square. Now 64, for 64 we can write 8 square and 121 is written as 11 square, so we can write it 8 upon 11 whole square, and it's equal to BC upon 15 upon 4 its whole square. Now square से square remove हो जाएगा, that means we can get 8 upon 11 equals to BC upon 15.4. Now if we separate BC, तो 15.4 comes in multiply, that means we can write it 8 upon 11 into 15.4 equals to BC. 11 से 15.4 कैंसिल हो जाएगा, 11 1 11, 4 is left, decimal 44, 11 4 जा 44. Now BC equals to 8 और 14 का मल्टीप्लाई, 14 8 जा 112, decimal 1 digit before, so 11.2 centimeter. Now move to second question, which is diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. O point पे intersect कर रहे हैं, means we can take one trapezium like this if we are drawing. So this is the trapezium ABCD, and here AB parallel to DC, these sides are parallel given, and the diagonals intersect at point O, so we can join them. This point is O. Now what is given at O? If AB equals to 2DC, here it is given that AB equal to 2DC, it is given, and AB parallel to DC, it is also given. Clear? Then find the ratio of the areas of triangle AOB and COD. ट्राइंगल AOB और COD का रेशियो निकालना है. सो इसके लिए हम पहले ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे. सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, अब जरा देखिए AOB जिस फॉर्म में ड्रॉ है, हम COD को उसी फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, रिक्रिएट कर रहे हैं, इसको रीड्रॉ कर रहे हैं. तो COD देखो, C यहाँ है, O यहाँ आ जाएगा और D यहाँ आ जाएगा. अब जरा देखिए ये एंगल A जो है दिस वन, ये इक्वल किसके होगा? C के, मीन्स ये एंगल C यहाँ है, इसके इक्वल आ गया. क्लियर? ऐसे ही जो एंगल B है, ये एंगल किसके इक्वल होगा? D के. ऑल्टरनेट एंगल सेम यहाँ पे D, ये इट मीन्स एंगल A C के इक्वल और एंगल B एंगल D के इक्वल. सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सो हियर एंगल A मीन्स एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD and angle OBA equals to angle ODC. Both regions are alternate in triangles, so AIA we can write. Clear? Now if these two angles are equal, then triangles are similar, so we can write therefore triangle AOB similar to triangle COD by double A similarity criteria. Now if triangles are similar, then we can use area ratio theorem.
So area of AOB upon area of COD. This ratio we have to find, that is equals to corresponding sides, and which side we have to given, we have given AB and DC, so we can write AB upon CD, AB upon DC is CD, so AB upon DC and its whole square. Now AB is given 2DC, so we can write 2DC upon DC and its whole square. DC and DC are cancelled, so 2 upon 1, that is 4 upon 1, means the ratio is 4:1. Clear? Now move to next question, which is third. सेकेंड क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है. थर्ड क्वेश्चन देखिएगा. Now again there is a trapezium. So firstly we draw a trapezium. Actually this is not given trapezium, just like trapezium. It is looking like trapezium but not given. So here in the given figure, ABC and DBC are two triangles on the same base BC. ABC and BCD are two triangles on the same base BC. तो BC बेस पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं. फर्स्ट इज ABC एंड सेकंड वन इज BCD. क्लियर? आफ्टर दिस आर द टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC. इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, AD इंटरसेक्ट कर रहा है तो AD को ज्वाइन करिए. सो इफ यू ज्वाइन AD देन इट इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट O. सो दिस पॉइंट इज O. इट इज गिवन. नाउ देन शो दैट, प्रूफ करना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल्स टू AO अपॉन DO. AO और DO के रेशियो के इक्वल आएगा. तो एरिया का रेशियो लाना है. देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, सिमिलरिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है. अब एरिया लेने के लिए हमें हाफ बेस इंटू हाइट बचता है, तो इसके लिए हमें हाइट ड्रॉ करनी है. तो ABC के लिए हमें A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो हमने एक A से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, सेम यहाँ से एक D से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. A से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको हमने M मान लिया और D वाले को N कह दिया. क्लियर? नाउ अब हमें फाइंड किसका रेशियो करना है, ABC और DBC. तो ABC और DBC के एरिया के लिए अगर हम देखेंगे एरिया, तो हाफ BC इंटू AM आएगा और इधर हाफ BC इंटू DN आएगा. इट मीन्स हमें रेशियो मिल जाएगा, BC कैंसिल हो जाएगा बेस, तो हमें रेशियो मिल जाएगा AM और DN. अब इस रेशियो को हमें AO और DO के फॉर्म में लाना है. इट मीन्स हमें ये स्मॉलर ट्राइंगल जो दो मिल गए उनको हमें सिमिलर करना है. सो इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल DON, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर किया. कैसे? एंगल M इक्वल टू एंगल N, सेम एक ही पॉइंट रख सकते हैं, सिंगल एंगल रख सकते हैं यहाँ पे. ईच 90, दोनों परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है. तो यहाँ मेंशन कर दीजिए कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर ऑन BC. दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं. क्लियर? एंगल M और एंगल N इक्वल हो गया. नाउ एंगल O इक्वल है वर्टिकल अपोजिट. सो फॉर दिस वी कैन राइट एंगल AOM इक्वल टू एंगल DON and it is by vertically opposite angle. So VOA, vertically opposite angle. Clear? Now these two triangles are similar. So therefore triangle AOM similar to triangle DON by double A, similarity criteria. So double A only we can write, we are writing here. So if these two triangles are similar, then their corresponding sides are equal, ratio is equal, proportional. So AM upon DN इक्वल्स टू AO अपॉन DO. ये रेशियो में प्रूफ करना था, तो इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया. नाउ वी आर यूजिंग एरिया फॉर्मूला. सो एरिया ऑफ AOB, नॉट AOB, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ABC. सो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC. सो एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट. सो हाफ बेस इज BC एंड हाइट इज AM. सो हाफ इंटू BC इंटू AM. Same here for DBC, base is BC and height is DN. So half BC into DN. Now half से half cancel, BC से BC cancel. So what we get here? AM upon DN. ये हमें मिल गया AM upon DN के इक्वल. अब AM upon DN किसके इक्वल है? AO upon DO से इक्वेशन 1 के इक्वल. So we can change into AO upon DO from equation 1. Then question is completed. Clear? So this is completed. Now move to fourth question, which is important. Fourth question is, if the areas of two similar triangles are equal, then prove that they are congruent. दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं जिनका एरिया इक्वल है और हमें प्रूफ करना है वो दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. क्लियर? तो हम इसके लिए कोई दो डायग्राम बना लें, कोई दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लें. सो वी आर ड्रॉइंग टू ट्राइंगल्स लाइक दिस. एरियाज आर गिवन इक्वल.
Here if we draw two triangles like ABC and PQR. So here in this sum given triangle ABC similar to triangle PQR, it is given, and areas are equal means area of ABC equal to area of PQR, it is also given equal. क्लियर है, एरिया भी इक्वल दिया हुआ है. अब प्रूफ क्या करना है हमें, ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट. तो क्या हम एरिया रेशियो थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर हैं, एरिया भी इक्वल है, तो यहाँ पे एरिया रेशियो थ्योरम यूज़ कर रहे हैं टू प्रूव. चलिए उसे मेंशन कर दे रहे हैं. सो टू प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. क्लियर, ये प्रूफ करना है. नाउ फॉर दिस प्रूफ, सिंस ट्राइंगल ABC similar to triangle PQ, then by area ratio theorem, area ratio theorem. So area ratio theorem के according area of ABC upon area of PQR equal to corresponding sides ratio, that means AB upon PQ its whole square equals to, again second side is BC and QR, so BC upon QR whole square equal to AC upon PR third side and its whole square, it is equal. Now here in the question we have given area of ABC equal to area of PQR. So can we write in the place of ABC PQR? So area of PQR upon area of PQR equals to same AB upon PQ whole square equals to PC upon QR whole square equals to AC upon PR whole square. Clear? And here we use since, which is given area of ABC equal to area of PQR, it is given, so we put in the place of ABC PQR. Clear? Now these areas are cancelled, that means we got 1. So here we can write 1 equals to AB upon PQ whole square equals to BC upon QR whole square equal to AC upon PR whole square, sorry, AC upon PR whole square. Clear? This is C. Now here 1 is equal in the all three terms, that means we can put 1 equal to all the terms separately. So we can write here AB upon PQ whole square equal to 1. Clear? And BC upon QR whole square equal to 1 also, and also we can put AC upon PR whole square equal to 1. Now if we remove square, then root of 1, so root of 1 is same, so it implies that we can write AB upon PQ equal to 1. Same here, BC upon QR equal to 1 and AC upon PR equal to 1. All the three ratios are equal. Can we cross multiply? So अगर cross multiply करेंगे तो हमें क्या मिला, AB equal to PQ, same here BC equal to QR and here AC equal to PR. Now see, all the three corresponding sides of two triangles are equal, that means AB equal to PQ, BC equal to QR and AC equal to PR, that means these triangles are congruent. So therefore triangle ABC congruent to triangle PQR by which criteria? Triple S. All the three sides are equal. Triple S congruency. Clear? Now move to next question, which is fifth. It is very important, most important question. Here DEF are respectively the midpoints of the sides AB, BC and CA of triangle ABC. There is a triangle ABC. This is triangle ABC. Here DEF are the midpoints of AB. D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC. Clear? Now find the ratio of the areas of triangle DEF and ABC. Triangle DEF, so join them, join these points, so we get a triangle DEF. Now we have to find the ratio of the areas of DEF and ABC. Clear? ये find करना है. So for this, firstly we have to prove these two triangles similar by any way. So
here D E F are given midpoints na. So firstly we are using given D E F are the midpoints of D is the midpoint of AB, BC and AC. It is given of triangle ABC. To find, यहाँ पे प्रूफ नहीं करना, फाइंड करना है, ठीक है. सो टू फाइंड एरिया ऑफ DEF रेशियो ना, तो इज टू एरिया ऑफ ABC. दिस इज टू फाइंड, क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं, टू फाइंड ऑलरेडी है. नाउ सॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत इसमें नहीं है. सो वी आर स्टार्टिंग सॉल्यूशन. नाउ हियर if we use midpoint theorem in 9th class you studied, in midpoint theorem if we join the midpoints of any two sides of a triangle which is parallel and half of third side, clear. So here DF are the midpoints of AB and AC, so DF is parallel and half of BC. Similarly other parts means same agar we use DE, so DE is also half of AC and EF also half of AB, clear. Or this question also can be done by BPT, but here we are using midpoint theorem. So in triangle ABC, D and F, these 2 points are midpoints of AB and AC then by midpoint theorem आपने कब पढ़ी हुई, 9th क्लास में पढ़ी हुई है मिड-पॉइंट थ्योरम. 9th और 10th एक्चुअली काफ़ी कनेक्टेड हैं, ठीक है. तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है, जो DF लाइन हो गई दैट इज़ हाफ ऑफ BC, पैरेलल ऑल्सो बट नॉट नीडेड, सो वी आर राइटिंग ओनली हाफ. सो हियर DF इक्वल टू हाफ BC. क्या हम इसको BC को अगर हम इधर अपॉन में ले आएँ तो हम इसे लिख सकते हैं DF अपॉन BC इक्वल टू 1/2. इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, क्लियर. सिमिलरली अगर हम बाकी पार्ट्स के लिए भी करें यही चीज़, किसके लिए, DE अगर हम लिखें तो DE हाफ ऑफ AC और EF इज़ हाफ ऑफ AB. सो हम लिख रहे हैं इसको DE अपॉन AC इक्वल्स टू 1/2 इक्वेशन 2 एंड EF अपॉन BC, EF अपॉन AB इक्वल्स टू 1/2. नाउ दिस इज इक्वेशन 3. From 1 to 3 their RHS are same, that means their LHS should be same. So from equation 1, 2 and 3, now here DF upon BC equal to DE upon AC equal to EF upon AB. Now the ratio of the corresponding sides are equal, that means triangles are similar. So therefore triangle DEF similar to triangle ABC by triple S criteria, clear. Now if these two triangles are similar then we can use area ratio theorem. So by area ratio theorem, therefore area of DEF upon area of ABC corresponding sides का ratio, that means we can use any ratio, so we are using DF upon BC its whole square by area ratio theorem, clear. Now put the value, DF upon BC is half from equation 1, so we can put here half and its whole square from equation 1, clear. So half square is 1/4. That means if we write in the form of ratio, so we can write therefore area of DEF is to ratio area of ABC, which is equals to 1/4, clear. This is question 5th completed. Now up to 6th question, which is prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग मीडियंस के इक्वल होता है, ठीक है. अभी आपने एरिया रेशियो थ्योरम में क्या प्रूफ किया है, एरिया का रेशियो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल है. यानी कि अगर हम साइड्स का रेशियो और मीडियन का रेशियो इक्वल कर लें तो ये हो जाएगा. तो हमने भी पिछली एक्सरसाइज में किया था 6.3 का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें यही था क्वेश्चन कि साइड्स का रेशियो और मीडियंस का रेशियो इक्वल प्रूफ करना था.
सो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर है ना। सो अगर हम दो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर ड्राइंग टू ट्राइंगल सिमिलर ए बी सी, अंदर ट्राइंगल पी क्यू आर, मीडियंस ड्रॉ करनी है इसकी, तो इसे मैंने एम कहा और इस मीडियन को एन कह दिया, ए एम और पी एन। क्लियर। नाउ सो हियर गिवन क्या है, इसको मेंशन करते हैं। गिवन हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये गिवन है, और मीडियंस दिया हुआ है, मीन्स एंड ए एम एंड पी एन आर द मीडियंस। क्लियर। अगर ये मीडियंस दिए हुए हैं, अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें मीडियंस का रेशियो और एरिया का रेशियो, मीडियंस के रेशियो का स्क्वायर एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। सो टू प्रूव एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू मीडियन ए एम अपॉन पी एन और इसका होल स्क्वायर। क्लियर। ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन की इसमें और कोई ज़रूरत है नहीं, मीडियन हम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। सो प्रूफ पे आते हैं ना, मूव टू प्रूफ। सो इट्स प्रूफ in proving these two triangles, firstly we have to prove triangle ABD is similar to triangle PQM, ABD नहीं सॉरी ABM and triangle PQN, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। होल ट्राइंगल सिमिलर है मीन्स एंगल B और एंगल Q इक्वल हो जाएगा। अब एंगल M तो हम नहीं ला सकते क्योंकि राइट ट्राइंगल नहीं है, ठीक है, अगर एल्टीट्यूड होता तो इक्वल हो जाता, बट यहाँ पे हम रेशियो ला सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, क्योंकि ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर गिवन है ABC और सिमिलर टू PQR। तो हम पहले इसी को स्टार्ट करते हैं जो हमें गिवन है, ठीक है। Since triangle ABC similar to triangle PQR, ये गिवन है, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल्स गिवन इक्वल हैं, इट मीन्स इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन राइट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू EC अपॉन QR, थर्ड रेशियो भी इक्वल होगा, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है बट मेंशन कर दे रहे हैं, AC अपॉन PR, इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया। और एंगल भी, एंगल तो सारे इक्वल होंगे लेकिन हमें वहाँ पे केवल एक एंगल चाहिए, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। क्लियर। इसे हमने इक्वेशन 2 कह दिया। और दोनों का रीज़न क्या है, CPST मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, तो सारी साइड्स का रेशियो, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, बट हमने एंगल्स में केवल एक ही एंगल यूज़ किया है, ठीक है। सो नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम लिखें AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, दोनों का रीज़न आपके पास है, इट इज़ फ्रॉम 1 एंड इट इज़ फ्रॉम 2, इक्वेशन 2। क्लियर। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, साइड्स का रेशियो इक्वल है और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है, AB और BC दोनों के बीच में एंगल B और PQ और QR के बीच में एंगल Q, जो कॉमन एंगल होता है वो जाता है। देयरफॉर ट्राइंगल ABM similar to triangle PQN. Now just checking the diagram here, this angle B and angle Q equal and ratio of the sides AB upon PQ equals to BC upon QR है। Okay, so triangles are not similar still. How it is, BC को हम लिख सकते हैं, wait, it is given here, we have to explain something, it is left. For BC we can write 2BM and for QR we can write 2QN। ये क्यों लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से तो हमने वैल्यू रखी, एंड अब इसी में आप मेंशन कर दो, ये चीज़ छूट गई यहाँ पे, एंड M और N क्या है, मिड पॉइंट्स, एंड M एंड N आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड QR, क्योंकि मीडियंस दिया हुआ है इसलिए पॉइंट छूट गया। 2 से 2 अगर हम कैंसिल कर लें, अब देखो हमें AB अपॉन PQ और BM अपॉन QN मिल गया, और एंगल B और एंगल Q इक्वल, इट मीन्स ट्राइंगल ABM सिमिलर टू ट्राइंगल PQN। यहाँ पे छूट गया था पॉइंट, तो इसको मैंने बाद में मेंशन किया, ठीक है। इसलिए डायग्राम देखना जरूरी होता है, बिना डायग्राम के क्वेश्चन कर रहे थे ना, डायग्राम पिछले पेज पे था। सो ABM सिमिलर टू PQN, नाउ हियर इट इज़ बाई SAS। अगर ट्राइंगल सिमिलर है इट मीन्स इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल है। डायग्राम से ही देखते हैं, साइड्स का रेशियो यानी कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AM अपॉन PN, और यही चाहिए हमें, तो AB अपॉन PQ, therefore AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AM अपॉन PN,
सेम क्वेश्चन आप कर चुके हो पिछली एक्सरसाइज में 6.3 का क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 16 क्वेश्चन था, सेम यहाँ तक था क्वेश्चन, ठीक है। उसके आगे का वो यहाँ है, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन सेम था बिल्कुल डिट्टो। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। सो since triangle ABC similar to triangle PQR, then by area ratio theorem, so now use it थ्योरम। क्या होगी? एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल। हमें केवल एक ही साइड का रेशियो लिखना है AB और PQ, क्योंकि हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं। बाकी तीनों साइड का रेशियो इक्वल ही होगा, सो AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। अब इस AB अपॉन PQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AM अपॉन PN, यानी कि एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है केवल उस क्वेश्चन के बाद, AM अपॉन PN और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे बस आपको मेंशन करना है फ्रॉम इक्वेशन 3। क्लियर? बस यही प्रूफ करना था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7th, then 2 MCQs also left. 7th question, prove that the area of equilateral triangle described on one side of a square is equal to the half the area of an equilateral triangle described on one of its diagonals. So here firstly there is a square is given, so we are drawing one square. It is a square, we are assuming it A, B, C, D. Now one equilateral triangle on one side, so we are drawing on AB. AB साइड पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, इसको मैंने E कह दिया। अब किसी भी साइड पे हम बना सकते, किसी भी डायगोनल पे ना, सेकंड किस पे? डायगोनल पे, तो डायगोनल मैंने AC लिया। अब AC डायगोनल पे मुझे क्या बनाना है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। किसी भी साइड बना सकते हैं, इधर भी और इधर भी, तो उधर साइड स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको मैंने F कह दिया। क्लियर? मीन्स ACF और ट्राइंगल AB दोनों कैसे हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ABCD क्या है? स्क्वायर है। तो गिवन है हमें, गिवन ABCD इज अ स्क्वायर एंड ट्राइंगल विच वन? ABE एंड ट्राइंगल ACF, क्योंकि एक ट्राइंगल किस पे था? साइड पे, तो AB पे, और एक ट्राइंगल उसके डायगोनल पे था AC पे, तो ACF कह दिया। आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ट्राइंगल्स का रेशियो ना, सो टू फाइंड प्रूफ, टू प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स साइड। साइड पे एरिया मीन्स एरिया ऑफ ABE is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonals. diagonal वाले का half means half area of ACF. क्लियर? ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन की यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं, तो प्रूफ देखिए, जो डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल होता है वो √2 टाइम्स ऑफ इट्स साइड होता है। चाहो तो आप इसे पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। अगर हम देखें यहाँ पे AB अगर साइड है, इसको अगर हम स्मॉल a कह दें, इसे अगर मैं स्मॉल a कह दूँ, ये भी स्मॉल a हो जाएगा, ये 90 होता है। इट मीन्स अगर हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएं तो ये क्या आ जाएगा? a√2 कैसे आ जाएगा? A स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है? A, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मीन्स 2A स्क्वायर, और उसका जब हम रूट करेंगे तो 2 रूट में आ जाएगा, और A रूट के बाहर मीन्स a√2 आ जाएगा। क्लियर? और इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2 टाइम्स its side, therefore AC equal to √2 AB, AC इक्वल टू √2 AB लिख सकते हैं, या a√2, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF सिमिलर होंगे, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल दोनों कैसे हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो सिंस all equilateral triangle are similar, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, सारे इक्विलेटरल सिमिलर होते हैं, देयरफॉर जो ट्राइंगल आपका फर्स्ट था ABE
दैट इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल, इक्वल नहीं होगा, सिमिलर टू ट्राइंगल ACF। क्लियर, क्योंकि ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब हम एरिया रेशियो थ्योरम लगा सकते हैं, तो एरिया रेशियो थ्योरम लगा रहे हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ABE अपॉन एरिया ऑफ ACF दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स में हम कोई भी साइड ले सकते हैं, हमने AB अगर यहाँ लिया तो यहाँ पे हम इसे AC ले रहे हैं, तो AB अपॉन AC और इसका होल स्क्वायर। क्लियर, AB की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन AC की वैल्यू हमारे पास है √2AB। और ये कौन सी थ्योरम हमने यूज़ की है वो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, एक्चुअली ये स्टेप नीचे आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे हम रीज़न क्या यूज़ किया, एरिया रेशियो थ्योरम, एरिया रेशियो थ्योरम। अब जरा देखिए ABCD कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 और इसका स्क्वायर क्या होगा 1/2। क्लियर, यहाँ पे क्या है आपके पास, एरिया ऑफ ABE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ACF कहाँ चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स वी हैव एरिया ऑफ ABE दैट इज इक्वल टू ACF उधर मल्टीप्लाई में, मीन्स हाफ ऑफ एरिया ऑफ ACF। और यही आपको प्रूफ भी करना था। क्लियर, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई।